present over here. Today my topic, in-house training topic is promoting mental health. So first I would like to extend my thanks to school management and CBSE who gave this golden opportunity to us to express our thoughts or our ideas in front of you all. And next I will pray to God I will pray to God that He will be with us in this whole session, throughout this whole session. So whatever I am saying here might help someone in one way or another way. So my topic, I am going to start my topic, promoting mental health. I will start with an important, very important saying that health is wealth. Everyone knowing that health is wealth. आपके पास अगर गुड हेल्थ है, आपके पास सब कुछ है. आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है and you are not in good health condition, then that money is waste. बेकार है आपका पैसा. You can not buy your good health with the money. आप अपने पैसे से उस मनी से आप अपने हेल्थ को नहीं खरीद सकते हो. Just what you can do, you can cure your health, but money can buy everything, not your health. And what is health? Health is total social, mental and physical well-being. You all know that कि health का definition not only you are physically well, then you are healthy. If you are not mentally well, then you are not called healthy. आप healthy नहीं हो सकते हो अगर आप mentally well नहीं हो. And nowadays the lifestyle gives us so many stress. Our lifestyle, our work pressure, and in students, in youth of our country, everyone suffering from some mental illness. I have some data which can say how many people of India are suffering from mental health issues. Now, first of all, what is mental health? Mental health disorder in children or youth are generally defined as delays or disruption in developing age or whatever we are today. That is the part of our upbringing. What is our mental status today is also a part of our upbringing. हमारी परवरिश जैसे होती है, जिस माहौल में होती है, उसी तरह से हमारा जो यंग एज है या हम जो यूथ बनते हैं या ओल्डर, वी आर गेटिंग ओल्डर, देन कैसे हम प्रॉब्लम्स को डील करते हैं. दिस ऑल कम्स फ्रॉम आवर अपब्रिंगिंग. हमारे बचपन के परवरिश से ये सारी चीज़ें आती हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर सच जनरेशन विच कैन हैंडल द प्रेशर्स, which can handle the all mental pressures on their generations. हमें वैसे जनरेशन प्रोड्यूस करने हैं, वैसे जनरेशन को बनाना है. लाइक बीइंग अ पेरेंट और बीइंग अ टीचर, हम बच्चों को इस तरह से तैयार करें, उनके बचपन में उनके वैल्यूज़, उनके रहने सहने के तरीका से हम उनको एक अच्छा एडल्ट या यूथ बना सकते हैं. सो इसी के साथ मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करती हूँ. व्हाट इज मेंटल हेल्थ? सो बिफोर दैट आई हैव सम डेटा. आई हैव कलेक्टेड सम डेटा. ग्लोबली 1 in 7 10 to 19 years old experiences a mental disorder. ये डेटा देखिए आपकी 10 to 19 years या आप कह सकते हैं 30 to 25 years के जो एडोलेसेंट्स या यूथ होते हैं, उसमें हर 7 में से 1 जो बच्चा है वो मेंटल डिसऑर्डर से परेशान है. एंड अकाउंटिंग फॉर 13% ऑफ ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज इन दिस एज ग्रुप. और इस एज ग्रुप में 30% जो चिल्ड्रेन वो मेंटल डिजीज से अफेक्टेड है. डिप्रेशन, एंजाइटी, बिहेवियरल डिजीज are among the leading causes of illness and disability among adolescents. ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो एडोलेसेंस में या यूथ में होते हैं. Suicide is the 4th leading cause of death among 15 to 29 years old, and the consequences of
failing to address adolescent mental health condition extend to adulthood, impairing both physical and mental health, and limiting opportunities to live fulfilling lives as adults. Then WHO के according, WHO work on strategies, programs and tools to assist government to assist करने के लिए WHO ने बहुत सारे programs तैयार किए हैं। हेल्थ नीड्स ऑफ एडोलेसेंस को किस तरह की नीड्स है, किस तरह से उनके मेंटल स्ट्रेस को बूस्टअप किया जा सकता, कम किया जा सकता है, इसके लिए WHO पूरे कंट्री के एजेंसीज के साथ, लोकल एजेंसीज के साथ मिलकर काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, द हेल्पिंग एडोलेसेंस थ्राइव इनिशिएटिव इज अ जॉइंट WHO यूनिसेफ। हमें पता है यूनिसेफ एक बच्चों का क्या कहते हैं, उनका काम करता है, उनकी देखभाल, उनके प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए काम करता है। एफर्ट टू स्ट्रेंथन policies and programs for the mental health of adolescents. More specifically, the efforts made through the initiative are to promote mental health and prevent mental health conditions. They are also intended to help prevent self-harm and other risk behaviors. Due to some mental illness, कभी आपने बच्चों को देखा होगा कि बच्चों ने अपने आप को हार्म करना शुरू कर देते हैं बच्चे, तो उसको दूर करने के लिए क्या प्रोग्राम किया जाए, जैसे ज़्यादा यूज़ ड्रग्स का और अल्कोहल का करने लगते हैं, उससे कैसे बचाया जाए, इसके लिए WHO जो है यूनिसेफ के साथ मिलकर और अदर कंट्रीज के लोकल ग्रुप के साथ मिलकर बहुत काम कर रही है। WHO also developed a module on child and adolescents mental and behavioral disorder as a part of GAP intervention guide, and this guide provides evidence-based clinical protocols for the assessment and management of a range of mental health conditions in non-specialized care settings. ये हमने कुछ डेटा मैंने देखा कि कहाँ WHO कैसे काम करती है और क्या है मेंटल हेल्थ। अब नाउ इट इज टाइम टू नो व्हाट इज मेंटल हेल्थ। क्या है मेंटल हेल्थ? सो लेट्स स्टार्ट। What is mental health? The World Health Organization defines mental health as a mental well-being in which people can realize their abilities, cope up with the normal stress, work productively and contribute to the community in a positive way. That is called mental health according to WHO definition. Now mental health is the foundation for the well-being of people and effective functioning of community. Obviously मैंने आपको बताया कि whenever we talk about the health not only consider the physical health, it also consists of mental health. So if we are mentally fit, we can do very nicely, we can do as a team work, productive work for community, a positive work for community. Now another definition, I have some other definitions also. Like health is defined as the stage of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी हैं, ऐसा कहीं नहीं है। अगर आप फिजिकली फिट हैं, फाइनेंशियली वेल हैं और मेंटली ठीक नहीं है तो आप बीमार हैं, आप कंप्लीटली बीमार हैं। Health is thus the balanced development of the individual's personality and emotional attitude which enables him to live harmoniously with his fellow men. And in 1950, WHO Expert Committee on Mental Health reviewed the various definitions of mental health and observed it is influenced by both biological and social factors. What is biological factor? Biological factors are factors within a particular person have, like
some problems in their metabolism, in their genetic problem. मतलब हर person का एक अलग biological factor होता है, and according to that biological factor हमारा behavior करने का तरीका sometimes जिसको कहते हैं genetic है, कभी-कभी ये genetic भी होता है. That is called mental health. The capacity in an individual to form harmonious relations with others. We are working together, so many people are working together in a community or in an institution or in any factories or office. We have to cope up with so many different mentalities. मतलब अलग-अलग mentalities के लोगों के साथ काम करना है. ऐसे में हम अपना उनके साथ एडजस्टमेंट कैसे कर पाते हैं, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द टॉपिक मेंटल हेल्थ. हम मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है, मेंटली हम अपने आप को कितना एडजस्ट कर पाते हैं उन लोगों के लिए, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द टॉपिक मेंटल हेल्थ. नाउ व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ. क्या इम्पैक्ट होता है, क्यों हम लोग According to a data, the consultation about mental issues in India, the consultation about mental issue is still a social stigma. अभी भी socially इस चीज़ को accept नहीं करते हैं कि mentally ये particular person बीमार है. They hesitate to seek help from doctors or consultants because उन्हें लगता है कि अगर किसी को पता चल गया सोसाइटी में कि ये पर्सन मेंटली परेशान है, तो दे विल नॉट बिहेव, द पर्सन्स विल नॉट बिहेव वेल विद देम. इस बात को छुपाने के लिए भी वो मेंटल हेल्थ को ध्यान नहीं देते. सपोज एग्जाम्पल है कि 5 years के बहुत सारे बच्चे क्लासरूम में हैं या कहीं प्ले ग्राउंड में आप देख रहे हैं, and amongst them one child is behaving differently, like बहुत बदमाशी कर रहा है, कभी झूले पे चढ़ जा रहा है, कभी कूद रहा है, then what you will say वो बच्चा बहुत बदमाश है, वो बच्चा बहुत बदमाश है. But sometimes वो बदमाशी क्यों कर रहा है, this is the point we have to understand कि क्या वो बदमाशी उसकी नॉर्मल है. अगर आपको मना करने के बाद भी रिपीटेड हरकत कर रहा है, अपने आप को डैमेज कर रहा है, ही डोंट नो कि अगर वो ऊपर से जंप करेगा तो उसे चोट लगेगी. अगर इन सब चीज़ों को बार बार अवॉइड कर आपको मना करने के बाद, दैट मीन्स दैट चाइल्ड नीड्स अ हेल्प. एंड हियर योर ड्यूटी इज टू उनको बचपन से समझाना है कि दिस इज हार्मफुल फॉर यू. And then after repeating consultancy, अगर वो बच्चा नहीं सही हो पा रहा है, तब आपको उनके पेरेंट्स से मिलकर उनको कन्वे करना है कि नहीं, ये बच्चा जो है इसको कुछ मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है. सो अभी हमें बहुत सारी बातें पता चल गई मेंटल हेल्थ के बारे में. तो क्या व्हाट इज़ द इम्पैक्ट, मेंटल हेल्थ का कहाँ कहाँ इम्पैक्ट पड़ता है, क्यों मेंटल हेल्थ ज़रूरी है, वाई मेंटल हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स. फर्स्ट, एजुकेशनल आउटकम. इफ अ चाइल्ड इज मेंटली वेल, मेंटली एस्टैब्लिश्ड, ही कैन रीड और राइट वेरी वेल. बहुत अच्छे से पढ़ सकता है, बहुत अच्छे से लिख सकता है और बहुत अच्छे से समझा सकता है किसी चीज़ को. तो दैट इज़ द इम्पैक्ट. नाउ प्रोडक्टिविटी एट अ वर्क. जिस दिन हम मेंटली बहुत स्टेबल कंडीशन में आते हैं यहाँ पे या कहीं भी घर पे भी, जिस दिन हम बहुत खुश होते हैं या मेंटली बहुत स्टेबल कंडीशन में आते हैं, हमें काम करने का मन करता है. वी एंजॉय आवर वर्क, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो टीचिंग हो स्कूल में, या और सारे फील्ड्स में जो प्रोफेशनल्स जाते हैं वो अच्छे से काम कर पाते हैं. बट whenever we feel depressed, कभी ऐसा होता है we feel sad, हम अच्छे से काम नहीं कर पाते, हमारा मन नहीं लगता है काम करने में. इसलिए मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, हमें खुश रहना ज़रूरी है. लेकिन सैडनेस इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. आप ये नहीं कह सकते कि हम हमेशा हंसते रहेंगे. हम अगर हमेशा हंसेंगे
तो लोग हमें क्या कहेंगे आपको पता है। तो हम हमेशा हंस नहीं सकते हैं। सॉरो और सैडनेस इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड व्हाट इज मेंटल बैलेंस, हाउ वी कोप विद दैट प्रॉब्लम। जस्ट गो थ्रू दैट प्रॉब्लम। अगर आपकी लाइफ में या हमारे लाइफ में या किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, जस्ट गो थ्रू इट। उससे आप गुजरिए, उसको जाने दीजिए, बस वो प्रॉब्लम आपके ऊपर हावी ना हो जाए। आप इतने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप। If we are mentally healthy, our interaction with other people, our colleagues, our husband, as our son, with our daughter, every relationship is fine. अगर हम mentally ठीक हैं, अगर हम परेशान हैं, suppose कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम परेशान हैं और हमारा बच्चा आता है, then what we do, डांट देते हैं उसको, कभी उसके साथ बहुत प्यार से नहीं बात करते हैं। लेकिन अगर हम मेंटली फ्रेश रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, तो एट दैट टाइम आवर बिहेवियर इज टोटल डिफरेंट, बहुत अलग होता है बिहेवियर। सो यू कैन सी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। हमें मेंटली हेल्दी होना क्यों ज़रूरी है। नाउ क्राइम रेट, आपने सुना होगा बहुत सारे न्यूज़ में या बहुत सारे चैनल्स पे क्राइम रिपोर्ट दिखाते हैं, उसमें मोस्टली 14 to 25 ईयर्स के यूथ और एडोलेसेंस शामिल रहते हैं। कभी आपने सोचा है क्यों? बिकॉज दे आर मोस्ट डिप्रेस्ड। वो उनके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही होती हैं, तो वो गलत रास्ते की ओर जाते हैं, दे डू क्राइम। नेक्स्ट है अल्कोहल एंड ड्रग एब्यूज। एट दैट एज अल्कोहल एंड ड्रग एब्यूज ऑल्सो इंक्रीजेस। जब बच्चा कमज़ोर होता है तभी वो किसी सहारे की ओर जाता है। इफ उसे आप एज ए पेरेंट सहारा नहीं दे पा रहे हो, एज ए टीचर नहीं दे पा रहे हो, देन बच्चा कहाँ जाएगा? किसी की गलत रास्ते पे जल्दी जाएगा, क्योंकि उसको तो बस सपोर्ट चाहिए, मेंटल सपोर्ट चाहिए। अगर कोई आके कहता है कि बाबू ये ड्रग्स है, ये नहीं बताएंगे कि ये ले लो तुम्हारा सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एंड ही टेक्स ड्रग्स एंड अल्कोहल एंड ही फील्स बेटर। ऑब्वियसली वो न्यूरोलॉजिकल आपको काम डाउन करते हैं कि बच्चे को अच्छा लगेगा कि नो नीड टू पेरेंट्स, कोई ज़रूरत नहीं है माँ बाप की, कोई ज़रूरत नहीं है टीचर की, मेरे लिए ड्रग्स एंड अल्कोहल ही काफ़ी है। अगर बच्चा मेंटली साउंड है तब उसे लगेगा कि नहीं, वी विल शेयर विथ यू, हर बात आपसे शेयर करेगा। इसलिए कभी भी बच्चा अगर आपके पास आता है तो शेयर करने, पेशेंसली उनको सुनिए, जस्ट लिसन टू देम, भगाइए मत। और हाँ, एक और चीज़, अगर आपने बोला कि सच बता दो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं या मारूंगी नहीं, और अगर बच्चा बहुत देर करके सच बता रहा है, तब आपकी मोरल ड्यूटी, आप उस बच्चे को नहीं मारिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर आपने ऐसा किया, वो नेक्स्ट टाइम झूठ बोलेगा, क्योंकि वो बोलेगा कि मैंने सच बताया फिर भी मार खाई, तो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा वो बच्चा? झूठ बोलेगा। तो दैट इज़ द मेंटल हेल्थ हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन। देखकर कितने सारे पॉइंट्स हैं जिस पे मेंटल हेल्थ का अच्छा इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट, व्हाट कॉजेज मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स? किस किस वजह से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं? देयर आर सर्टेन पॉइंट्स, जब चाइल्डहुड में ही उनका क्योर कर दिया जाएगा तो प्रोबेबली, इसलिए मैंने कहा कि मेरे कुछ वर्ड्स आपको हेल्प कर पाएँ किसी तरह से, आप किसी बच्चे को बचा पाएँ। सपोज आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं और एक बच्चे की भी लाइफ को आप सेव कर पाएँ, बचा पाएँ, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा और ये मेरा सेशन बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो मैं ऐसा सोचती हूँ, इसलिए मैंने कोशिश किया है इसको इंटरेस्टिंग बनाने की। सो व्हाट आर द कॉजेज? मेन, कोई भी बीमारी को हटाने के लिए उसकी कॉजेज को जानना ज़रूरी है, तभी तो बीमारी हटा पाएंगे आप। तो व्हाट कॉजेज आर चाइल्डहुड एब्यूज, ट्रॉमा और नेगलेक्ट। यू कैन सी द फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज चाइल्डहुड एब्यूज? एब्यूज कहते हैं फिजिकली, मेंटली, सेक्सुअली, किसी भी तरह का हरासमेंट अगर बच्चे को दिया गया है,
वो बच्चा अच्छे से डेवलपमेंट उसके ब्रेन का नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बच्चा हमेशा डरा रहेगा। सो अगर आपके नज़र में कोई ऐसा बच्चा आता है तो आप उस बच्चे के जीवन को बचाइए, उससे काउंसलिंग करिए, उससे पूछिए। नेक्स्ट है ट्रॉमा। व्हाट इज ट्रॉमा? ट्रॉमा का एक्चुअल मीनिंग है कि any experience that overwhelms your thought, emotions or body. It is very personal experience. How you remembers an event can very different from how someone also experience the way same thing. आपके घर में 2 या 3 बच्चे हैं, आपके खुद के 1 बच्चा है, 2 बच्चा है, 3 बच्चा है। आपके खुद के बच्चे के बिहेवियर के बीच में डिफरेंस होगा। आपका कोई बच्चा आपके डांट को बहुत आराम से ले लेगा, आपका कोई बच्चा बहुत देर तक याद रखेगा कि मम्मी ने पापा ने डांटा मुझे या टीचर ने डांटा। तो ये ट्रॉमा ऐसा टर्म है कि किसी भी पर्टिकुलर इवेंट को कोई किस तरह से लेता है। कोई ऐसी घटना हुई है जो उस बच्चे के ब्रेन पे बहुत गहरा असर छोड़ के गई है, दैट इज ट्रॉमा। एंड नेग्लेक्ट। व्हाट इज नेग्लेक्ट? कैसे नेग्लेक्ट फील करेगा? हैविंग लॉट्स ऑफ सिबलिंग। मान लीजिए किसी घर में बहुत सारे भाई बहन हैं, उसमें से कोई एक बच्चा फील कर सकता है, और वो पेरेंट्स हमेशा ध्यान रखते हैं अपने सारे बच्चों का इक्वली, बट कोई भी एक उसमें से हो सकता है जो कि अपने आप को नेग्लेक्टेड फील कर सकता है। ऐसा होता नहीं है, बट उसके दिमाग में आ जाता है, और एट दैट टाइम उसका डिटेरिएशन शुरू हो जाता है, उसी टाइम से वो भटकना शुरू कर देता है। तो दिस इज द फर्स्ट कॉज। नाउ व्हाट इज सेकंड कॉज? सोशल आइसोलेशन और लॉनलीनेस। जैसे मान लीजिए बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, घर में कोई नहीं रहता है बच्चे के साथ, सिंगल चाइल्ड है, कोई नहीं रहता है बच्चे के साथ, बच्चा क्या कर रहा है? उसको अकेलापन फील होगा। पेरेंट्स नहीं अटेंड कर रहे सोशल फंक्शंस, बच्चे भी नहीं जा पा रहे हैं, सोशली आइसोलेटेड हैं। तो this is also the reason. Now experiencing discrimination and stigma including racism. Racism के बारे में मेरे ख्याल से SST वाले लोग ज़्यादा जानते होंगे, मुझे बहुत ज़्यादा इसकी जानकारी नहीं है, बट साउथ अफ्रीका वगैरह में ब्लैक एंड वाइट को लेके बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिसमें एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जितने ब्लैक मैन होते हैं या ब्लैक वुमेन होते हैं, दे आर मोर डिप्रेस्ड देन वाइट मैन। जो वहाँ पे गोरे लोग होते हैं उनके कंपैरिजन में काले लोग ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट in South Africa, sir, I am right? Any other countries are also there? I don't remember the name. Now, social disadvantage, poverty or debt. Suppose any family is having so much debt, बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है, and every time the parents are disturbed, बहुत परेशान हैं वो parents। तो ऐसे में क्या होगा? जब हम ही परेशान हैं तो हमें देख के हमारा बच्चा परेशान ही रहेगा, वो कैसे खुश रहेगा? अगर आप किसी तरह से जाके कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, तो आपका बच्चा तो हंसेगा नहीं, वो भी परेशान होगा। अगर वो परेशान होगा, आप सेंसिबल है, आपका बच्चा है, परेशान होगा नहीं। नेक्स्ट है bereavement. What is the meaning of bereavement? You can see on your screen. Losing someone close to you. Some children are very unlucky कि उनके पेरेंट्स बचपन में ही उनसे अलग हो जाते हैं due to death। ये बहुत बड़ा कारण होता है बच्चों को ब्रेन में डिस्टर्ब करने के लिए, बहुत बड़ा कारण होता है। और जब बचपन में एक बार कोई बात बच्चों के मन में बैठ गई तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू थ्रो आउट, बहुत मुश्किल होता है। एंड नेक्स्ट, हैविंग अ लॉन्ग टर्म फिजिकल हेल्थ कंडीशन, सीवियर और लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। Now come to the point, severe or long term stress. What is severe long term stress? Suppose a 25 years old youth is daily struggling with what to study, where to go, क्या होगा हमारा जॉब, अनएम्प्लॉयमेंट है, there are so many causes। तो या फिर ये स्ट्रेस है कि आप अपने बच्चे को कहाँ पढ़ा पाएंगे, कैसे पढ़ा पाएंगे, बहुत सारे स्ट्रेस की रीज़न होते हैं, और वो लॉन्ग टर्म तक अगर रहते हैं तो वो आपको मेंटली इल बनाते हैं, बीमार करते हैं। तो इस सब चीज़ ये मोस्टली होता है
14 to 25 ईयर्स ओल्ड में, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बच जाएंगे उससे, हम भी परेशान हो सकते हैं। लाइक हम लोग परेशान हो सकते हैं कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, हमारा बच्चा सही जा रहा है, नहीं, बहुत सारे रीजन से परेशान होने के लिए हमारे पास। नेक्स्ट है हैविंग अ लॉन्ग टर्म फिजिकल हेल्थ कंडीशन। सपोज एनीवन इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर और हार्ट अटैक और एनी अदर क्रोनिक डिजीजेस। एट दैट टाइम जैसे किसी डॉक्टर ने कहा कि यू आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर, आई डोंट थिंक कि एनीवन इज हैप्पी, ओह आई एम सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ऐसा नहीं होता है। एट दैट टाइम वो डिप्रेशन हो जाएगा उसको कि अरे बाप रे, मुझे क्या कैंसर हो गया, मैं क्या करूँ। थोड़ी देर तो उसे समझ में नहीं आएगा, उसमें से 70% लोग जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं, बाकी 30% किसी विशेष परिस्थिति में अपने आप को बचा भी लेते हैं, बाकी के 70% ऑलमोस्ट डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो दैट आर द कॉजेज ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। तो अगर मेंटल हेल्थ को सही करना है तो इन कॉजेज को ढूंढना होगा कि इसमें से क्या कॉज है जो हमें मेंटली इल बना रहे हैं या हम परेशान होते हैं। नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक इज मोस्ट कॉमन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्टूडेंट्स। ऐसी क्या कंडीशंस हैं जो स्टूडेंट्स में कॉमन है एज वी आर टीचर्स, तो वी शुड नो दैट some common problems like you can see on screen, attention deficit hyperactivity disorder, that is called ADHD. What are the symptoms? Sometimes अभी आपको क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे इससे रिलेटेड लगेंगे, रिलेटेबल। So the symptom of this disease ADHD, क्या symptom है? The symptom of ADHD include short attention spans. थोड़ी थोड़ी देर पे उनका अटेंशन खत्म हो जाता है, एक जगह टिक के नहीं रह सकते हैं। Easy distraction, छोटी सी किसी आवाज़ से भी माइंड उनका डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। Too much talking, आप बार बार मना करिएगा फिर भी बात करेंगे। And constant interruptions, हर बार आपको इंटरप्ट करेंगे पढ़ाने के लिए, आपको किसी काम से इंटरप्ट करेंगे, आप उनको कितना समझा दीजिए कि डोंट टॉक, लेकिन वो बात करेंगे ही करेंगे। टू मच इंटरप्शंस एंड हाइपर एक्टिविटी, एवरी टाइम दे आर मूविंग देयर हेड हियर एंड देयर, कुछ नहीं तो बॉडी मूवमेंट करते रहेंगे, अपनी जगह पे बैठे बैठे वो काफ़ी परेशान करेंगे आपको। एंड दिस डिसऑर्डर मे हैम्पर लर्निंग इन स्टूडेंट्स, और इसकी वजह से ऑब्वियसली स्टूडेंट्स की लर्निंग डिस्टर्ब होगी, वो परेशान रहेंगे क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होता है, उनमें कंसंट्रेशन की कमी होती है, वो एक जगह बैठ नहीं सकते हैं, बात करते रहते हैं, तो ऐसे में उनकी पढ़ाई को तो डिस्टर्ब होना ही होना है। नाउ दिस डिसऑर्डर में medication can curb the symptoms of this disorder. Sometimes counseling, sometimes some medicines चलाए जाते हैं जिसकी वजह से इस डिसऑर्डर को थोड़ा कम किया जा सकता है। However, many a times these symptoms may signify the existence of other mental health disorder. और ये जब प्रोलॉन्ग करता है, जब ये आगे बढ़ता है तो कुछ और मेंटल डिजीज को साथ में जनरेट करता है, लाइक mentally retarded persons and bipolar disorders, ये भी साथ में उनके ग्रो करते हैं। Now we are often use this term stress, anxiety, depression. हम लोग अक्सर अपने डे टू डे लाइफ में इसको यूज करते हैं कि डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है। क्या होता है एंजाइटी एंड डिप्रेशन, क्या होता है इनका सिम्टम? तो एंजाइटी एंड डिप्रेशन की बात करते हैं, दोनों थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है देखते हैं। एंजाइटी एंड डिप्रेशन आर द मोस्ट कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर इन स्टूडेंट्स। ये सबसे कॉमन होता है, कई बार हमें पता ही नहीं चलता है कि ये बच्चे डिप्रेस्ड हैं, ये बच्चे एंजाइटी से परेशान हैं। स्टूडेंट्स विथ एंजाइटी मे हैव लो अटेंडेंस, स्ट्रगल टू फिनिश देयर वर्क, show declining academic performance, fear new experience और worry। बच्चे का अटेंडेंस कम होना या अगर आप कहीं किसी नए प्रोजेक्ट को आप उनको दे दें तो क्या होगा, वो डरते हैं कि नहीं होगा,
कभी कभी बच्चे खुद ही हाथ उठाएंगे कि हाँ मुझे ये प्रोजेक्ट में रहना है। कभी कभी आप प्रोजेक्ट का नाम बताइएगा तो तुरंत से हाथ नीचे कर लेंगे, क्योंकि वो नए असाइनमेंट को फेस करने से डरते हैं, परेशान रहते हैं। एंड होमवर्क एंड ग्रेड्स जो है उनका धीरे धीरे डिक्लाइन करते जाता है। देयर में ऑल्सो बी अ शार्प फॉल इन देयर इंटरेक्शन विद देयर पीयर्स। अचानक आप देखेंगे अपने फ्रेंड्स से वो बात करना बंद कर देते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीयर्स? जो साथ में उनके फ्रेंड्स हैं, क्लास फेलोज हैं, उनसे बात करना बंद कर देंगे। टीचर्स से इंटरेक्शन कम कर देते हैं, बोलते नहीं हैं वो। अगर आप खड़ा होकर क्लास में पूछिएगा कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, वो कुछ बताएंगे नहीं आपको, चुपचाप खड़े रहेंगे सर नीचे करके। एंड मोटिवेशनल लेवल इज वेरी मच लो, बहुत कम हो जाता है उनका मोटिवेशन लेवल। आप उनको कितना भी समझाइए उन्हें समझ में नहीं आएगा। लॉस ऑफ स्लीप, सोने की कमी हो जाती है, काम में स्लो हो जाते हैं। लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड सुसाइडल टेंडेंसी आर ऑल्सो द सिम्टम। और एंजाइटी एंड डिप्रेशन का एक्यूट सिम्टम होता है। क्या होता है बताइए? सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप करती है। ऐसे ही टाइम पे बच्चों में सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप करती है। देयर आर सम कॉमन सिम्टम्स बिटवीन एंजाइटी एंड डिप्रेशन। क्या क्या सिम्टम है? एंजाइटी एंड डिप्रेशन और दोनों की कुछ कॉमन प्रॉब्लम भी हैं। इन एंजाइटी आप क्या होंगे बच्चों में देखिए? ट्रेम्बलिंग, रैपिड हार्ट रेट, पाल्पिटेशन। ये हमारे लोगों में भी हो सकता है। ये बच्चों की बात नहीं, स्टूडेंट्स की मैंने बात की है, ये बड़ों में भी हो सकता है। सडनली किसी भीड़ को फेस करने में पाल्पिटेशन होने लगता है, स्वेटिंग होने लगती है, ट्रेम्बलिंग होने लगती है। अगर हमसे बड़े ऑफिसर सामने बैठ जाए तो हमें लगेगा कि हाउ टू स्टार्ट आवर स्पीच, कैसे बोले, कहाँ से शुरू करें। ब्रीदिंग रेट, इंक्रीज ब्रीदिंग रेट, सांस की धड़कन बढ़ जाती है, हम परेशान हो जाते हैं। मसल्स टेंशन, समटाइम्स वी फील क्रैम्प्स, अचानक हाथ पैर खींचने लगते हैं। फीलिंग नर्वस, ऑब्वियसली नर्वसनेस फीलिंग अगर आने लगेगी तो वी कैन नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग वेरी वेल। हम भूल जाएंगे कि हमें क्या एक्सप्लेन करना है, हम रास्ता बदल देंगे, हम कुछ और बोलने लगेंगे ड्यू टू नर्वसनेस। Now feel hypervigilance. What is the meaning of hypervigilance? Hypervigilance का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को ध्यान रखना, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना। कई बार वो बातें होती नहीं हैं फिर भी ध्यान रखते हैं। मतलब विजिलेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को देखना। हाइपर मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, उतनी ज़रूरत नहीं है। सपोज मैं यहाँ खड़ी हूँ, सब बच्चों को सॉरी मतलब बच्चों की बात कर रही हूँ, मैं सब बच्चों को देख रही हूँ, कौन सा बच्चा ध्यान से मेरी बात सुन रहा है और कौन सा नहीं सुन रहा है। एंड हाइपर विजिलेंस में जो बच्चे हैं या मैं हूँ, अगर मैं हाइपर विजिलेंट हूँ, एंजाइटी से परेशान हूँ, तो मुझे लगेगा वो बच्चे ने अगर पेन उठाने के लिए भी अपना हाथ नीचे किया, मुझे लगेगा वो कुछ बदमाशी करने के लिए हाथ नीचे कर रहा है और मेरे थॉट में वो नेगेटिव प्रोसेस आने लगेगा कि नहीं वो बच्चा नीचे झुक रहा है, दैट मीन्स कि वो कुछ बदमाशी करेगा। एंड ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं, टाइम नहीं देते हैं उस बच्चे को कि क्या करने के लिए, हम डांटते हैं, वो बच्चा डर जाता है, बिना बात से डरता है। तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं हम भी उस सिचुएशन में। ठीक है। नाउ एगोराफोबिया। एगोराफोबिया इज द फोबिया फ्रॉम, कौन बताएंगे? कोई बताइए एगोराफोबिया क्या होता है? नहीं पता, मैं बता देती हूँ। एगोराफोबिया इज फोबिया फ्रॉम ओपन स्पेस और क्राउडेड एरिया। किसी भी क्राउडेड एरिया से या ओपन स्पेस से डर लगता है। बच्चे क्या करते हैं, क्लास में आना बंद कर देते हैं, या इवन वी पीपल ऑल्सो, भीड़ से डर लगता है। वी कैन नॉट फेस गैदरिंग, हम लोग अवॉइड करते हैं सोशली कि वहाँ बहुत गैदरिंग, हम लोग जाना बंद कर देते हैं। द पर्सन्स विच आर सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी, दीज आर द सिम्टम्स। नाउ पैनिक, छोटी छोटी बात को बड़ा बना देते हैं, छोटी छोटी बात को बड़ा बना देते हैं, दैट इज पैनिक। अगर किसी बच्चे ने कुछ बोला, हल्ला कर दिया हमने,
that is fatigue, and sense of impending danger. अननोन से डेंजर को लेके हम नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर ले आते हैं. That are the symptoms of anxiety. Now depression, fatigue. सडनली लगता है बहुत ज़्यादा नींद आने लगी, वीकनेस हो गई, फैटिगनेस आ जाता है. नेक्स्ट इरिटेबिलिटी, हर बात पे इरिटेट होते हैं, छोटी छोटी बात पे इरिटेट होते हैं, उसको लेट इट गो वाले पोजीशन में नहीं रहते हैं, उसको पकड़ के उसका पूरा इसेंस निकालना है, तब जाने देते हैं उस बात को, तब भी नहीं जाने देते हैं. समटाइम्स वो इधर में डेटा की तरह स्टोर हो जाता है. आई होप ऐसा करता होते जाने का. नो, दैट इज नॉट रिसर्च. छोटी बात को बड़ी बना. लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज, किसी भी एक्टिविटी में इंटरेस्ट उनका कम होने लगता है. गिल्ट, एवरी टाइम दे फील गिल्टी, हमेशा गिल्ट उनको फील रहता है कि ये काम मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और वो क्यों नहीं कर पा रहे मुझे भी नहीं पता है. दे ट्राई टू डू बट वो कर ही नहीं पाए इस काम को. वर्कलेसनेस, हेल्पलेसनेस, उनको हमेशा लगता है कि उनका होना धरती पे बोझ है. वो क्यों है धरती पे, किस लिए है. हेल्पलेसनेस, उन्हें लगता है उनकी कोई हेल्प ही नहीं कर रहा है, वो एकदम हेल्पलेस है, वो खुद की हेल्प नहीं कर पाते हैं, दूसरे से हेल्प मांगना दूर की चीज है. होपलेसनेस, हमेशा एक वैकेंट सा लुक लेके घूमते रहते हैं, लगता है कि क्या है जिंदगी में, ऐसे वाले थॉट की क्या है जिंदगी, बेकार चल रही है, मतलब ऐसा वाला थॉट लेके चलते रहते हैं. प्रोलॉन्ग ग्रीफ, किसी छोटी बात का दुख मनाएंगे तो मनाते चले जाएंगे, उस चीज को खत्म ही नहीं करेंगे. अगर उनसे आफ्टर 7 days आप उस टॉपिक पे बात करें तो वो फिर पूरा गाना गा देंगे कि ऐसे हुआ वैसे हुआ वैसे हुआ, लेकिन वो उस बात को भूल के आगे बढ़े ही नहीं आज तक. जब आपके दिमाग में पुरानी बातें चल रही हैं तो नई बातें आप कैसे दिमाग में रखिएगा. आई होप दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. I think so. Persistent sadness and suicidal thoughts. Obviously, suicidal thoughts is the acute stage of depression. Or some common problems are between these, जो दोनों में होते हैं. Excessive worry, जरूरत से ज़्यादा डरना. अगर suppose कि I have in-house training and मुझे लग रहा है मैं कहाँ से start करूँगी, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं, मैं मतलब ये डर जो है मेरे काम को इफेक्ट कर देगा, मैं उसको इफेक्टिवली नहीं कर पाऊंगी क्योंकि डर है मेरे अंदर, कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा है. और वंस एक बार आप इस कॉन्फिडेंस में आइए कि क्या होगा देखा जाएगा, कुछ न कुछ बता दिया जाएगा, ठीक है. इस थॉट के साथ अगर आप आएंगे तो कुछ न कुछ अच्छा करके जाएंगे, ठीक है. सोमैटिक कंप्लेंट्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोमैटिक कंप्लेंट्स? Psychosomatic is a term. Psychosomatic is always psychological term is related to physical. अगर आप psychological सही हैं, then physical सही. Psychologically affected है, physical भी आपका affect होगा. अगर आप किसी कारण से anxiety और depression से परेशान हैं, that will affect our physical health. आपको body pain, muscles cramp, headaches, sudden body pain, ये सारी चीजें अचानक से होती हैं, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं है कि आप स्ट्रेस में हैं. एंड देन डिसीजन डिफिकल्टी विद थिंकिंग एंड कंसंट्रेशन और डिसीजन मेकिंग. एंड विद दिस ऑल प्रॉब्लम्स यू कैन नॉट टेक प्रॉपर डिसीजन, यू आर नॉट एबल टू थिंक प्रॉपर, ऑलवेज यू आर फीलिंग डिफिकल्टी टू मेकिंग अ डिसीजन, कोई डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं. तो इफ यू आर डिप्रेस्ड then don't take any decision. ऐसा कहा भी जाता है कि अगर आप गुस्से में हैं या डिप्रेस में हैं तो किसी तरह का डिसीजन नहीं लीजिए. एंड एजिटेशन, एपेटाइट और स्लीप डिस्टर्बेंस. एजिटेशन, ज़रूरत से ज़्यादा आप किसी चीज़ को लेके उसी चीज़ के चारों तरफ घूमना, और स्लीप डिस्टर्बेंस, एपेटाइट, भूख आपकी डिस्टर्ब होती, या तो ज़रूरत से ज़्यादा आप खाना खाने लगते हैं या ज़रूरत से कम खाना खाने लगते हैं. ज़रूरत से ज़्यादा, सपोज योर स्लीप साइकिल इज ऑफ 6 hours. एक जनरल स्लीप साइकिल 6 to 7 hours होता है अकॉर्डिंग टू साइंस, और सडनली
you start sleeping for 8 hours or for 4 hours. This is the warning sign that you are feeling mentally low. किसी तरह से आप mentally अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं. So need to work about your mental health. Next, social withdrawal. सोसाइटी से अलग होने लगते हैं. कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता है. कैसे सोशली हम इंटरेक्ट कर पाएंगे. डरते हैं जाने में. लोगों से कैसे शेयर करेंगे प्रॉब्लम. सपोज किसी के बच्चे ने कुछ नहीं किया, अभी वो करियर के ट्रांजिशन फेज में है. ऐसे में पेरेंट्स को खराब लगता है. लोग पूछेंगे कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, हम क्या बोलेंगे. इस चीज से डर से वो फेस नहीं कर पाते हैं सोसाइटी को. तो उनको सोशल विड्रॉल सिंड्रोम भी हो जाता है. नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, ऐसा मुझे लग रहा है कि इस फिगर में आप देख सकते हो. कैन सी इन दिस फिगर a lady is thinking about so many different things. First one you can see कि डोर चेक कर रही है वो. We will discuss in detail क्या है ये. Then after you can see the things are keeping in a proper way. And next shoes, वो पैर एंटर करने से पहले दिमाग में क्या थॉट आ रहा है. We will discuss in detail. And that in that figure you can see both the arrows are given. Repeated actions are this lady is doing repeated action of washing her hand. Then this disease is called OCD, obsessive compulsive disorder. और तो आप कहेंगे कि क्या बुरा है अपनी चीजें अरेंज करके रखने में. दैट इज वेरी नाइस थिंग. अपनी चीजें अरेंज करके रखिए, बहुत अच्छी बात है. इसमें बुराई क्या है. क्यों इसको बीमारी का नाम दे दिया गया. क्या परेशानी है इसमें भाई. हम तो चीजें अरेंज करके हम अपने घर को साफ कर रहे हैं, हम अपनी सेफ्टी का ध्यान दे रहे हैं, तो बीमारी कैसे हो गई है. तो बहुत अच्छी है. हम तो परेशान रहते हैं घर को गंदा रखने से. घर में झगड़ा होता है कि आपने अपने सामान को ऐसे फेंक दिया वैसे फेंक दिया. तो इसमें बुराई क्या है, बीमारी कैसे हो गई. सो लेट्स डिस्कस. OCD में लीड्स स्टूडेंट्स और पर्सन्स टू हैव सर्टेन परसिस्टेंट थॉट्स. एक थॉट को रिपीट प्रोसेस में चलते रहता है. एक ही थॉट रिपीटेड इसमें चलते रहता है. एंड फ्रीक्वेंट बिहेवियर, एक ही बिहेवियर को आप बार बार करते हैं. सपोज आपने अभी अपना हैंड वॉश किया है, आधे घंटे बाद आप अननेसेसरी जाके हैंड वॉश करेंगे. कोई जरूरत नहीं है हैंड वॉश करने की, बट आप जाएंगे हैंड वॉश करके आएंगे. ये साइकिल जो है लगातार चलते रहता है. बिकॉज ऑफ इनएप्रोप्रिएट थॉट्स इन क्लासरूम. एंड जब आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं और आपके दिमाग में कुछ ऐसे थॉट चल रहे कि अभी मैं बैठा हुआ हूँ, मैंने इसको छू दिया है, मैंने अपने बुक को छुआ है, मेरे हाथ में गंदा लग गया होगा, और वो पढ़ाई की जगह उसका दिमाग कहाँ जा रहा है कि मुझे अपना हैंड वॉश करने जाना है बिकॉज मैंने इसको छुआ है. ठीक है. एंड इसकी वजह से क्या होता है, कंपल्शन एंड ऑब्सेशन. वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं कंपल्सिव ऑर्डर में डालेगी कि नहीं, यू गो एंड वॉश योर हैंड, और आप पढ़ाई छोड़ेंगे और अपना हाथ धोने चले जाएंगे. लैक ऑफ कंसंट्रेशन, इनकम्प्लीट स्कूल वर्क एंड ड्रॉपिंग ग्रेड्स. कहीं भी आपकी पढ़ाई में कंसंट्रेशन में कमी होगी तो ग्रेड्स आपके डाउन जाएंगे. नथिंग न्यू, मेकिंग इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स टू परफॉर्म. और स्टूडेंट्स को कोई भी अपना वर्क परफॉर्म करने में काफ़ी डिफिकल्टी होगी. यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो है जो कभी कभी ऑर्गेनाइज रहना भी बहुत खतरनाक हो जाता है. सर, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. तो आप देखिए कि कई बार बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ऑर्गेनाइज होना भी कैसे खराब होता है. ये चीज़ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि एक लड़की है और कैसे उसको वो बीमारी में कन्वर्ट होता है उसका. आप प्लीज़ ये छोटा सा वीडियो देखिए, सो इट विल बी मोर क्लियर टू यू. Hi, my name is Naomi. Ballet is my absolute favorite thing in the world, but a condition called obsessive compulsive disorder put my dreams of dance on hold. My obsessive compulsive disorder, or OCD, started when I was in junior high. I started to get totally stressed out by the order of things. I was fixated on making sure everything was put in the perfectly right place all the time. I felt that I had to do it, like I had no choice.
I knew that what I was doing didn't make any sense and that I should just stop doing it. But whenever I tried to stop, something took over in my brain and I just had to keep going. But that wasn't all. I also had these very upsetting pictures in my mind, like dreams, but I was awake. They were images of terrible things happening as a result of a mistake I made. I saw my grandparents being murdered by an intruder who entered the house through a door I left unlocked. I became convinced that I was going to cause some life-ending event as a result of my carelessness. These thoughts and images were obsessions. People with OCD have all different types of obsessions. The important thing to know is that the obsessions are unwanted, intrusive, and repetitive thoughts or images, and that the person experiencing them knows they are unreasonable and excessive. Leaving my apartment for school in the morning was a nightmare. As soon as I closed the door, the images and thoughts started. What if I left my curling iron on? What if I didn't lock the door? Something terrible will happen. My family will be hurt. It will be my fault. I have to go back and check. It felt terrible, and I was almost always late for school. Are you for real right now? The obsessions created so much fear and anxiety for me that I had to do something to make myself feel better. I was afraid to tell my friend what was happening in my head. I didn't want her to think I was losing my mind. The obsessions kept building and building until I couldn't stand it anymore. I didn't know what to do, and to make it worse, compulsions began. A compulsion is something you do to reduce the stress caused by a feeling that things just aren't right. To get rid of that feeling, you need to do something, like touching, counting, or chanting. A compulsion makes you feel relief for a short time, but before you know it, the obsessions are creating anxiety again. That brings back the compulsions. It feels like it's never going to end. Just like with obsessions, people have all kinds of compulsions. Remember, a compulsion is what the person does to get relief from the anxiety the obsessions create. One of my compulsions was ordering. There was a time when I stopped going to school because I would spend 5 or 6 hours in my bathroom or kitchen making sure things were in their correct place. It's so hard to explain in words, but I felt like if I didn't arrange these things, that something terrible would happen. As soon as I walked away, the overwhelming stress would drive me back to repeat the same thing again. It was maddening, but I couldn't stop. My life was going down the tubes. I have lived with my grandparents most of my life. They started getting really worried about me when I wasn't able to go to school. Hey Grandma, get over here. This is my grandma. Say hello to everyone, Grandma. Hi there. I understand we're talking about your OCD. I remember when you were really sick. I didn't know what to do for you. It was heartbreaking. Sometimes I even helped you with your compulsions because I could see that was the only thing that made you feel better. But it never worked for long. The day we went to your pediatrician and got help was a day I will never forget. Your grandfather and I love you so much, but we needed help to know how to best help you. Naomi, I know you are scared. It must be very hard to have so many obsessions and compulsions, and I want you to know that you are not losing your mind. You have obsessive compulsive disorder, and it's causing a lot of problems in your life, but I can help you with that. I want you to take the medicine I prescribe, and also see a therapist. The combination of the medicine and the therapy will help you manage the intrusive obsessions and the overwhelming desire to engage in your compulsions. Now imagine that each part of the brain is like a different building. The buildings are connected by pathways. Along these pathways are messengers that carry information between buildings. There is some evidence that people with OCD have a lot of activity in certain parts of the brain. The chemical messengers in your brain are too excited. They are running around like chickens with their heads cut off and causing you to feel you are constantly in danger or that something bad is about to happen. By taking medication and working on changing your thoughts of therapy, you will slow these messengers down. Once they stop flooding your system with anxious messages, you will have more control over the thoughts and images in your mind and how you choose to deal with them. This will help you control both your obsessions and your compulsions. The doctor was right. I went to therapy and learned to manage my thoughts better. The medication helped to slow things down so I wasn't so afraid all the time. I was able to go back to school, spend time with my friends, and get back in the dance studio. I was able to tell my friends about what was happening. And guess what? They didn't laugh at me or make fun of me. They understood and were helpful. My grandmother was right. I needed help to get my life back on track. Getting help for my OCD was the best decision I ever made. Hey, you're on time. I'm so glad you're managing your OCD. It
You can also सो आपने देखा कि कई बार ऑर्गेनाइज रहना ज़रूरत से ज़्यादा भी बीमारी को प्रोड्यूस करता है। जैसे आपने देखा कि फ्रिज में बॉटल्स एक जगह नहीं रखा तो वो लौट के आके फ्रिज के बॉटल्स को अरेंज करके गए। तो इस तरह से ओसीडी या समटाइम्स बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे में रहना भी दिक्कत है। ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ बुरा होता है। नाउ नेक्स्ट proceed our slides, stress and anxiety. 7 signs of mental health issues. What are the 7 signs of mental health issues? The 7 signs are first, change in feeling. Obviously, we have discussed a lot about these topics. And loss of interest in every aspects of life. They lose interest. Change in sleeping habits. Low energy. They feel very low at any work. इवन इन सेल्फ केयर, वो अपने आप का भी ध्यान नहीं रख पाते, इतने आलसी हो जाते हैं। डिफिकल्टी इंटरैक्टिंग, एपेटाइट और वेट चेंज एंड अनकंट्रोलेबल इमोशंस। रैपिड मूड स्विंग, कभी सेम पर्सन कभी बहुत दुखी रहेगा, फिर कभी बहुत खुश हो जाएगा। देन आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यू विल गेट कंफ्यूज कि अभी तो ये ठीक था, अभी क्या हो गया। आप परेशान रहेंगे, वो खुद परेशान है, आपको भी परेशान कर रहा है। तो बेटर है कि आप उसको हेल्प करिए और आप खुद भी खुश रहिए, उसको भी खुश रहने दीजिए। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर डेवलपिंग मेंटल हेल्थ? एज ए टीचर क्या रोल होता है? हियर 2 quotations are here given by James A. Baldwin, American writer. Children have never been used to listening to their elders, but they have never failed to imitate them. ये एक बहुत फेमस राइटर अमेरिका के, जिन्होंने बोला कि कभी बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, लेकिन नकल हमेशा आपकी ही करते हैं। एंड नेक्स्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हेम गैनर, चिल्ड्रन आर लाइक वेट सीमेंट, व्हाटएवर फॉल्स ऑन देम मेक्स एन इम्प्रेशन। जो भी उन पे आप जैसा वैल्यू डालिएगा वैसे ही बनेंगे। इसलिए बचपन में ही अगर मेंटली आप बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं तो बड़े होकर वो एक अच्छे यूथ बनते हैं। तो जितना रोल पेरेंट्स का होता है उतना ही रोल टीचर का होता है, बिकॉज अ चाइल्ड स्पेंड हिज 5 to 6 hours एट स्कूल। सो इट्स ऑल्सो योर ड्यूटी, आपकी ड्यूटी है एज अ टीचर कि आप बच्चों को अच्छे से वैल्यू दें। द हेडलाइन ऑफ एन आर्टिकल इन इंडिया टुडे, एक डेटा है कि इंडिया इज द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? सोशल कॉजेज हो सकते हैं, इकोनॉमिकल कॉजेज हो सकते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस। द नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे ऑफ इंडिया 2015-16 states nearly 150 million Indians are in need of medical intervention depending on the category of mental disorder. According to an article in Mint, India's suicide rate has exceeded the normal average. जो एवरेज था उससे ज़्यादा उन्होंने उस चीज़ सुसाइडल रेट बढ़ गया है। देन व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर? The role of is twofold. First, a teacher can support students who are known to be struggling with mental health issues. सबसे पहले आप उस बच्चे को पकड़िए जिसको आपको लगता है कि उसको मेंटल इश्यूज हैं। This can be done by providing resources, referrals and just being listening ear. Sometimes बच्चों की प्रॉब्लम को चुपचाप सुन लीजिए, तभी आप बच्चों की बहुत हेल्प कर पाएंगे। And second, a teacher can help to prevent mental issues from developing in first place. Suppose a child is using some abusing word in his school, then as a teacher क्या कर सकते हैं? Stop at the very first stage. वहीं पे आप उनको मना करिए कि ये गलत चीज़ है। तो as a teacher आप ये काम कर सकते हैं। Next, what is the importance of health awareness in school? स्कूल में क्या ज़रूरत है? स्कूल में ज़रूरत है स्कूल बिकॉज स्कूल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोमोटिंग स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ। स्कूल्स जो है बच्चों के मेंटल हेल्थ डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करते हैं, काफ़ी बड़ा रोल है बिकॉज 5 to 6 hours बच्चे हमारे साथ हैं। एजुकेशन प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट्स अ पर्सन मेंटल हेल्थ अक्रॉस अ लाइफ टाइम।
और जो हमें उनको जो शिक्षा देंगे, जो समझाएंगे, उनके साथ पूरी ज़िंदगी जाने वाली है। It plays a role in creating a positive community that enhances a sense of connection and belonging in the students. अगर कोई प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट आप किसी बच्चे को देते हैं, वो साथ में बैठ के काम करते हैं, तो वो अपना जो है कम्युनिटी बिल्डअप या बिहेवियर इंटरेक्शन आपस में एक दूसरे से बढ़ाते हैं, अपनी चीज़ों को शेयर करना सीखते हैं। तो ये एक अच्छी वैल्यू हुई उनके लिए। नेक्स्ट है, स्कूल्स कैन डेवलप अ सेफ एंड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट टू promote students' mental health, and this is the best achieved by working in partnership with all members of the school community. स्कूल कम्युनिटी के सारे मेंबर्स मिलकर इस काम को कर सकते हैं, किसी एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इट्स ड्यूटी फॉर ऑल टीचर्स, ऑल मेंबर्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। नेक्स्ट, प्रोग्राम्स क्या क्या हम रख सकते हैं स्कूल में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए? सोशल एंड इमोशनल स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज दैट प्रमोट लाइफ लॉन्ग मेंटल, किसी भी तरह का सोशल इमोशनल स्किल हम उनपे डेवलप कर सकते हैं। स्किल्स कैन डेवलप स्किल टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मैनेज द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ। जो डे टू डे, सपोज कि अगर केजी का बच्चा है, उसके लिए वही स्ट्रेस हो गया, ए टू जेड लिखना है, वो बहुत बड़ा स्ट्रेस हो गया उनके लिए। उनको कैसे खिला के हंसा के लिखवाना है, ये हमारी ड्यूटी है। उनको ये बताना है कि दिस इज़ आवर डेली रूटीन, उसको एज ए स्टडी, एज ए हार्ड वर्क नहीं बताना है। तो इस तरह से हम इस तरह से हेल्प कर सकते हैं। अ सेंस ऑफ ऑटोनॉमी एंड पर्पस, उनमें अपने आप को ग्रो कराने का पर्पस, अपने आप को डेवलप करने का मौका दे सकते हैं। उनको लीडर, वो टीम लीड कर सकते हैं, इस तरह से उसमें लीडरशिप की क्वालिटी आती है। तो एज अ टीचर वी कैन डू so many things. Now 15 mental health tips for teachers. Yes, of course we also need some mental health tips. तो first है making it a priority. Yes, teachers should make their mental health treatment, caring of their mental health as a priority. अपने mental health का केयर करना प्रायोरिटी होनी चाहिए, because if they are mentally strong, then they can give good values to students and themselves. Seek out support. अगर आपको लग रहा है कि आप परेशान हैं, तो आप अपने कलीग से सपोर्ट कीजिए, या जिसको आप लगता है कि आपके ज़्यादा क्लोज हैं, आप उनसे बात करिए, अपनी बातों को रखिए। थिंक ऑफ मेंटल हेल्थ इन हेल्दी वे, और मेंटल हेल्थ को गलत तरीके से ना लेके सही तरीके से लिया जाए कि हम अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखेंगे, दैट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए कि लोग क्या कहेंगे और हम अपने मेंटल इश्यूज को डिस्कस नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करना है। वी शुड डिस्कस आवर मेंटल हेल्थ इन अ प्रॉपर वे। नाउ बी इन राइट प्लेस, जो आपके लिए सही जगह है वहाँ रहिए। अवॉइड टॉक्सिसिटी, बहुत सारे लोग एक साथ हैं, जहाँ टॉक्सिसिटी है वहाँ से दूर होइए। एम्फसाइज पर्पस, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, हैव अ लाइफ एंड नेवर फील स्टक। किसी भी काम से, किसी भी जगह से जब आपको फील होता है कि आप स्टक हो गए हैं, उस जगह को छोड़िए। लेकिन ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी बात पर हम परेशान हो गए कि इस जगह को छोड़ दिया, बहुत परेशानी है, ऐसा भी नहीं है। आप वहाँ 2, 3 साल 4 साल काम कर रहे हैं और फिर भी आपके पर्सिस्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, सेम टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, देन लीव दैट प्लेस। अब उस जगह को छोड़ने का टाइम आ गया है। अगर आपको सामने से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अगर आपसे मैनेजमेंट से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, देन लीव दैट प्लेस। नाउ 7 स्टेप्स, यहाँ आप देख सकते हैं कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जो आपको खुश रख सकते हैं। छोटी सी बच्ची, बहुत प्यारी सी, अभी बोर हो रहे हैं आप, तो इसलिए मैंने कहा छोटी सी बच्ची है, बहुत प्यारी सी, उसने कुछ स्टेप्स बताए हैं। मेरी बातों को ना सुन के इस बच्ची को देखिए कितना क्यूट है, वो बता रही है टॉक लेस, लिसन मोर, कम बोलिए ज़्यादा सुनिए। कंप्लेन लेस, अप्रिशिएट मोर, आपके पास जो है उसको अप्रिशिएट करिए। आपके पास जो है बहुत है, बहुतों के पास बहुत कुछ नहीं होता है। फेयरलेस, लव मोर, डरिए नहीं, प्यार करिए सबसे। एंड जज लेस, एक्सेप्ट मोर, सबको जज मत करते रहिए, उसमें वो उसने ये कर दिया तो ये गड़बड़ हो गया, वैसा उसने किया होता तो ये गड़बड़ हो गया, जज कम करिए। एंड वॉच लेस, डू मोर, और
कब देखिए, ज़्यादा काम करिए, टाइम ज़्यादा काम करने में टाइम स्पेंड करिए। तो इस तरह से हम अपने आप को और बच्चों को हेल्प कर सकते हैं, उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने में, मेंटली साउंड बनाने में। नाउ आई वुड लाइक टू कंक्लूड माय टॉपिक। होपफुली मुझे लगता है आप लोग को पसंद आया होगा। बहुत बढ़िया। थैंक यू।